for the second Saturday of November 2025. A few stray thoughts. And a few general remarks. And a few points of view. By way of a roundup of the week. All my own musings. Like, a week full of interesting events. Like, pictures of ladies queuing up before polling booths in Bihar, mustering a record 65% peaceful voting shows that woman power will decide Bihar's fate. A good sign. Sang Cars Weekly, the ink never dries. Sang Cars Weekly, it's all here for you. Like, Rahul Gandhi upped the ante on vote chori, but Charanjit Kaur, 75, contradicted Rahul Gandhi to say she voted once, not 223 times. Ditto for Pinky Kaushik. She said photo was of Brazilian model but voter card was hers. मेरी फोटो बहुत तीजी फोटो मेरी नाम किसी और का एक ही वोट डाली? रंजीत की डाली। तो जब गए थे तो वहाँ क्या देखा था, क्या कुछ कहा फिर? वोट डालने ने कहा जी आप हंसने लग जाते भी आप अब आया फिर वोट बहुत पैसे 150-200 वोट पेपर देखो। जब ये सर फर्जी वोट का मामला सामने आया तो इसमें हम जो पिक थी हमारी फोटो लगी हुई थी ना, वो एक ही महिला की फोटो कम से कम 250 वोटों पे लगी हुई थी। वो हमने इलेक्शन से पहले ये मुद्दा उठाया था कि ये इसको ठीक किया जाए और बीएलओ के पास भी हम गए, बीएलओ को भी संज्ञान में दिया, लिखित में भी दिया, तो इसमें कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ, ना ही ठीक की उन्होंने फोटो ये। उसके बाद हम वीडियो दफ्तर, उस टाइम मैडम थे सुमन कादियान और मेरी मिसेज लोक समिति मेंबर थी, हमने इसके लिए भी बहुत काफी लोग इकट्ठे होकर वीडियो दफ्तर के सामने भी पहले तो हमने अपनी बात रखने की कोशिश की। जब हमारी बात का कोई संज्ञान में नहीं, कोई बात का हल नहीं निकला, तो हमने वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना प्रदर्शन शुरू करते ही कुछ पत्रकार बंधु वहां आए। उसके बाद 3-4 दिन हम बैठे रहे, तो उसके बाद मैडम ने लिखित में ले लिया कि हम इसका समाधान कर देंगे। आज इस बात को 3.5 साल हो गए हैं, किसी भी तरह से इसका कोई समाधान नहीं हुआ और इसी की वजह से, इन्हीं फोटो की वजह से, फर्जी वोटर की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। Rahul Gandhi levelling a vote chori allegation, the hydrogen bomb as he called it, or the Haryana bomb, whichever way you want to see it. Now, remember the picture that Rahul Gandhi had shown of a woman saying she's a Brazilian model whose picture repeatedly appears in the voter rolls of Haryana. He used this to allege vote chori. We've tracked down this woman on your screens, this Brazilian. Her name is Larissa. Now, she in fact has spoken out saying that no, she's not a model. She says my old pics are being used. I've got nothing to do with politics. I don't know where my picture has emerged from. Like, Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar is in trouble because of his son's controversial land deal in Koregaon Park, Pune. Chief Minister has suspended 2 government officers and ordered investigation. A land deal, a VVIP Neta's son, an alleged scam. Amid mounting criticism over the scandal involving his son Parth Pawar, Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has announced that the controversial Pune land deal, along with all related documents and transactions, stands cancelled. The Deputy Chief Minister confirmed that a high-level probe panel has been constituted to investigate all allegations, with a report expected within a month. However, the NCP chief has denied any wrongdoing by himself or his son, asserting that they had no role in any alleged malpractice. The decision to cancel the deal came after Ajit Pawar held a series of meetings, first with senior party leaders and then with Chief Minister Devendra Fadnavis. The allegations centered on Amadia Enterprises,
a firm linked to Parth Pawar which purchased government land in violation of rules for 300 crore rupees despite its market value being around 1800 crore rupees. The firm is also accused of forging documents and evading the mandatory 2% stamp duty. Meanwhile, the opposition continues to target Maharashtra government, demanding strict action against the Deputy Chief Minister's son. Like, does cancellation of deal purge the offence a misdeed? Isn't it like returning stolen property on getting caught? Agree? Like, Satyacha Morcha, taken out by opposition parties in Mumbai was more of a show of strength. Both sides are addendum on Satya, purification of voter lists. माझ्या आठवणीप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्राच्या नंतर महाराष्ट्रामध्ये सर्व राजकीय पक्षांची एकजूट पहिल्या प्रथम झाली असेल. ही विरोधी पक्षांची एकजूट नाही, ही लोकशाहीचं प्रतिनिधित्व आणि लोकशाहीचं नेतृत्व करणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांची एकजूट आहे. आणि मतचोरी करणाऱ्यांना सांगतो की आज नुसती ठिणगी बघताय, या ठिणगीचा वणवा कधी होऊ शकेल एवढं लक्षात ठेवा. तुमच्या बुडाला आग लावण्याची ताकद या ठिणगीमध्ये आहे. मध्यंतरी एक मी शब्द वापरला तो गाजला. You are watching Sanglikars Weekly. Like, can you believe that a Maharashtra minister mooted the idea of sterilizing leopards because they are multiplying? Oh my God. Living among leopards. Maharashtra and Gujarat are seeing an increase in human leopard conflicts and have proposed sterilization programs for the animal. Like, celebrating 150 years of Vande Mataram is a good idea. It is a great inspirational song. But don't play politics. एक ऐसा गीत जिसने ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरे देश को जगा दिया था। 7 नवंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन जब भारत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया ये अमर गीत पहली बार 1875 में बांग्ला दर्शन पत्रिका में छपा था और बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सुरों में बांधा और तब से ये गीत हर भारतवासी के हृदय में देशभक्ति का प्रतीक बना। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलक्ष्य में आयोजित 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया और समारोह में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें हिस्सा लेते हुए कहा, वंदे मातरम इज नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट इज द वॉइस ऑफ इंडिया सोल। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध वंदे मातरम ने आजादी की एक चिंगारी भड़काई थी। यही नारा बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से लेकर पूरे देश के आंदोलन तक गूंजता रहा। राष्ट्रीय भावना को जन्म देने वाला ये गीत एक भारत एक माँ एक संकल्प की विचारधारा को दर्शाता है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस समारोह में भाग लेना वंदे मातरम की अहमियत को आज भी जिंदा रखता है। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित ध्रुवदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी. Like, Rahul Gandhi's comment that army is controlled by 10% upper castes was highly objectionable and factually wrong. There were justifiably violent reactions from Rajnath Singh and Amit Shah. Also, Air Chief Marshal AP Singh objected. Improper comment by Rahul Gandhi.
Don't politicize army. अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो है, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है। देखिए देश में अगर आप देश की आबादी देखें तो तकरीबन 90% देश की आबादी या दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है। 90% लोग इन समाज के अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी से आते हैं। मगर अगर आप देश को देखें, और मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो है, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती है, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरा कहना है कि अगर हिंदुस्तान के 90% लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, तो अगर हम इनको नहीं शामिल करेंगे तो कैसा हिंदुस्तान बनेगा? अंबानी अदानी जैसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में। Like, I am glad that ex-Maoist, Bhupati, took lead in hardcore Maoist, Kamla's surrender. A welcome farewell to arms. Like, we need to welcome SC order directing candidates to disclose all criminal cases, including those which resulted in acquittals. Not every acquittal is honorable. Supreme Court directs all the political parties to publish within 48 hours the criminal records of candidates in assembly and parliament polls. Supreme Court also directs parties to publish the reasons for the selection of candidates with criminal records besides mere winnability. In fact, there has been an alarming rise, remember, the number of candidates with criminal backgrounds in the last 4 general elections. आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शन पास किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी दागी आदमी को टिकट देती है तो उनको उसका कारण बताना पड़ेगा कि क्या उस क्षेत्र में, उस लोकसभा के क्षेत्र में या उस विधानसभा के क्षेत्र में उनको एक भी आदमी साफ सुथरा नहीं मिला, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसके खिलाफ कोई अपराध न हो। और यदि वो देती हैं तो उसके बाद उनको 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा विस्तृत ब्यौरा, उसके अपराधों का पूरा ब्यौरा, उसके खिलाफ एफआईआर कितनी हुई है, एफआईआर कहां हुई है, एफआईआर किन धाराओं में हुई है, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ,
कितने क्या पूरे ट्रायल की क्या स्टेज है, ये पूरा विस्तृत ब्यौरा 48 घंटे के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने फेसबुक और ट्विटर पे डालना पड़ेगा। 48 घंटे के अंदर उस कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा 72 घंटे के अंदर यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दागी को टिकट देती है एमएलए और एमपी का, उसको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा एफिडेविट पे कि क्या कारण है कि वो दागी को टिकट दे रही है, किसी एक गैर दागी आदमी को टिकट नहीं दे रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्डर है इसका कंप्लायंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का कंप्लायंस नहीं करती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ, अब ये पहली बार हो रहा है कि जो राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देंगी और उसका विस्तृत ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में पब्लिश नहीं करेंगी, उसको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। क्या ये ब्यौरा सिर्फ अपराधियों के लिए या सारे कैंडिडेट को देना पड़ेगा, जिसमें कि इंक्लूडिंग आपको अगर आपको हर एक कैंडिडेट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट ऐसा जिसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है, तो सिंपल एक लाइन लिख देना है कि हाँ उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है। अगर किसी के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं तो उसका बाकायदा एफआईआर नंबर, ट्रायल की स्टेज, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, फेसबुक ट्विटर पे डालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में पब्लिश करना पड़ेगा। Will SC's order now change anything? You are watching Sangalikars Weekly. Like, BJP's ex-Union Minister RK Singh caused a flutter by claiming that Adani Power caused a loss of 62,000 rupees crores to government in Bhagalpur power project in Bihar. Shocking. मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके आरके सिंह ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले अडानी पावर के खिलाफ बम फोड़ दिया है। आरके सिंह ने आरोप लगाया है कि भागलपुर के पीर पैंती में थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए अडानी ग्रुप से जो करार किया गया है उसमें 50,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होगा। एबीपी न्यूज से बात करते हुए आरके सिंह ने कहा है कि अडानी पावर के साथ बिहार सरकार ने 25 साल का एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत बिजली की कीमत 6.075 रुपए प्रति यूनिट रखी गई है। आरके सिंह का आरोप है कि इस समझौते में फिक्स्ड कॉस्ट 4.16 रुपए है। इसका मतलब हुआ कि सरकार बिजली की एक भी यूनिट खरीदे या न खरीदे, उसे ये राशि अडानी ग्रुप को देनी ही पड़ेगी। अगर मान लें कि एक साल में करीब 2,000 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान अडानी ग्रुप को करना पड़ेगा, तो 25 साल में ये राशि 50,000 करोड़ रुपए हो जाती है। आरके सिंह का दावा है कि क्योंकि वो ऊर्जा मंत्री रहे हैं और इसलिए बिहार की भलाई के मद्देनजर एक विसिल ब्लोअर ने उन्हें इससे जुड़े कागजात मुहैया कराए हैं। आरके सिंह ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, इस करार को तुरंत रद्द किया जाए, इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि बिहार में चुनाव है, कांग्रेस ने इस आरोप को तुरंत लपक लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुलकर अपनी ही सरकार द्वारा किए गए घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं। अब आरके सिंह के इस आरोप पर अडानी पावर का भी बयान आ गया है। कंपनी ने कहा है कि बकायदा बोली में सबसे कम कीमत लगाने पर यह कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला है, जो 6.075 प्रति किलोवाट है। बिहार सरकार ने 2012 में जमीन अधिग्रहण किया था। जब बिहार सरकार ने एनटीपीसी समेत कई कंपनियों से संपर्क किया और कोई भी आगे नहीं आया, तो अडानी ने बिडिंग के जरिए जमीन ली। जमीन लीज पर है। अब आते हैं टाइमिंग पर। आरके सिंह ने यह आरोप 4 नवंबर को लगाया, यानी बिहार में पहले फेज की वोटिंग से सिर्फ 2 दिन पहले। बिहार चुनाव में यह दूसरी बार है जब उन्होंने एनडीए को ही मुश्किल में डाल दिया है। इससे करीब 1 महीने पहले उन्होंने बिहार बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए थे। गृह सचिव रह चुके आरके सिंह ने तब सोशल मीडिया एक्स पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को वोट न देने की अपील करते हुए बकायदा एक वीडियो डाला था। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिनके लिए अमित शाह ने यह कहकर वोट मांगा कि तारापुर से इनको जिताकर भेजिए, इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। Like Gopi Chand Hinduja, the richest British Indian, 85, passed away.
Also passed away Professor Naresh Dadich, eminent mathematician astrophysicist who established IUCAA Institute in Pune under Professor Jayant Nalekar. Sad exits. Naresh Dadich, born September 1, 1944, is a theoretical physicist, formerly at Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics (IUCAA). He was also the director of IUCAA until August 31, 2009. Presently he holds the M.A. Ansari Chair in Theoretical Physics at Center for Theoretical Physics, Jamia Millia Islamia, Delhi. He became the director of IUCAA in July 2003. He is currently a visiting faculty of the University of KwaZulu-Natal at Durban, South Africa, and also works with gravity research groups in Portsmouth, UK and Bilbao, Spain. Naresh Dadich's specialties include classical and quantum gravity and relativistic astrophysics. Along with his colleagues, he has published over 100 scientific papers. He has supervised several PhD students. Like, Anil Ambani is issued yet one more summons by Enforcement Directorate. His 40 properties worth 3,000 crores are attached. The Enforcement Directorate has provisionally attached more than 40 properties linked to entities of Reliance Anil Ambani Group valued at 3,084 crore rupees. According to sources, the attachments include Anil Ambani family's residence at Pali Hill, the Reliance Center property in New Delhi, and multiple assets spread across Delhi, Noida, Ghaziabad, Mumbai, Pune, Thane, Hyderabad, Chennai, and East Godavari. As per sources, the orders of attachment were issued on October 31st under Section 5(1) of the PMLA Act, which allows the Enforcement Directorate to temporarily attach properties suspected to be linked to proceeds of an alleged crime. The Enforcement Directorate claims that the case involves diversion and laundering of public funds raised by Reliance Home Finance Limited or RHFL and Reliance Commercial Finance Limited or RCFL. The ED is probing the deals between Yes Bank and RHFL and RCFL between 2017 and 2019. Yes Bank invested 2,965 crores in RHFL instruments and 2,045 crores in RCFL instruments, which later turned into non-performing investments. Enforcement Directorate also attached properties of Shikhar Dhawan and Suresh Raina in illegal betting cases. ईडी ने सुरेश रैना और शिखर धवन की करीब 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। दोनों पूर्व क्रिकेटर्स के खिलाफ ये एक्शन सट्टेबाजी से जुड़े केस में लिया गया है। रैना और धवन की जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें सुरेश रैना का 6 करोड़ 64 लाख का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, जबकि शिखर धवन से जुड़ी 4.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 के प्रावधानों के तहत हुई है। सट्टेबाजी के जिस मामले में कुर्की हुई है, उसमें युवराज सिंह, रॉबिन थप्पा, सोनू सूद, उर्वशी रौटेला, मिमी चक्रवर्ती और अनुष्का हाजरा के साथ साथ रैना धवन से भी पूछताछ की थी। ईडी की जांच में पता चला कि इन दोनों खिलाड़ियों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी की साइट 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड के प्रचार के लिए समझौता किया था। ईडी के मुताबिक रैना और धवन दोनों ने 1xBet से जुड़ी विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया। ये अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स और उसके सरोगेट ब्रांड का प्रचार करते थे। प्रचारों के लिए पेमेंट विदेशी संस्थाओं के जरिए लिया गया था, जिनका मकसद पैसे के सोर्स को छुपाना था। ईडी ने इन पैसों को अवैध सट्टेबाजी से हासिल इनकम माना है और अब संपत्ति को जब्त किया है। एजेंसी के मुताबिक 1xBet प्लेटफॉर्म को चलाने वाले के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस एजेंसियों ने डिटेल में जांच पड़ताल की। पता चला कि कंपनी ऐसे पेमेंट गेटवे और अकाउंट्स के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की सर्विस दे रही थी, जो भारत में लीगली नहीं है। ईडी ने जो जांच में समझा, उसके मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे अवैध सट्टेबाजी में हुई। रैना और धवन ने ये जानते हुए भी कि 1xBet प्लेटफॉर्म भारत में लीगल नहीं है, इसके विज्ञापन के बदले में पैसा लिया और जो पैसा आया उसे विदेशी मिडलमैन के जरिए भेजा गया।
ईडी ने इस जांच और रैना धवन की संपत्ति कुर्क करने के बाद आम जनता के लिए भी एक कंसल्टेशन जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और इससे जुड़ी एक्टिविटीज में शामिल होने या उन्हें बढ़ावा ना देने को कहा है। साथ ही ज्यादा रिटर्न देने का वादा करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स, सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार करने वाले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल न होने को कहा है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ पीएमएलए कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें 7 साल जेल की कैद और ऐसे लेन देन में हासिल पैसे की कुर्की हो सकती है। Like, can you believe that Indigo Airline made losses of rupees 2582 crores in Q2? इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस बार नंबर्स में काफी पीछे रह गई। जून क्वार्टर में लगभग 2186 करोड़ का प्रॉफिट और एक क्वार्टर के अंदर ही 2582 करोड़ के लॉस में बदल गया। जी दोस्तों, इंडिगो ने सितंबर क्वार्टर में लगभग 2582 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले जून क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा सॉलिड प्रॉफिट हुआ था। अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो उस टाइम का लॉस लगभग 987 करोड़ था। मतलब इस साल का लॉस और बड़ा हो गया है, वाइडन हो गया है। लेकिन रेवेन्यू नंबर्स थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9% बढ़ के लगभग 18,555 करोड़ पहुंच गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट के कोर इंडिकेटर की, EBITDA। ये नंबर एक साल पहले लगभग 2,434 करोड़ था, लेकिन अब गिर के 1,114 करोड़ रह गया, यानी ऑलमोस्ट हाफ। कंपनी का कहना है कि बड़ा लॉस मेनली हुआ है करेंसी मूवमेंट के इम्पैक्ट की वजह से। अगर टिकट सेल्स की बात करें तो पैसेंजर टिकट रेवेन्यू 11.2% बढ़ा, पहुंचा लगभग 15,967 करोड़ और एंसिलरी रेवेन्यू जैसे सीट सिलेक्शन, बैगेज, मील्स 14% बढ़ के 2,141 करोड़ तक पहुंच गया। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि प्लेन्स तो बेशक फुल हैं, लेकिन प्रॉफिट इंडिगो के फिलहाल ग्राउंडेड हैं। You are watching Sanglikars Weekly. Part 2 follows.